स्लाइड पे वापस आ गया हूं मैं, आपको भी विजिबल हो गई होगी। रोहित, स्लाइड विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो ये जो इश्यूज थे उनके लिए हायरार्किकल राउटिंग जो है वो प्रपोज की गई, और ये कॉन्सेप्ट जो है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेलीफोन सिस्टम जिसमें एसटीडी आईएसटीडी कॉन्सेप्ट था। सो इन हायरार्किकल राउटिंग द टिपिकल classification or division of the router is like that. Routers are divided into region. That means within a region 10, 30, 40 router will be accumulated, and several region made cluster. Then by combining the cluster, the zone may be constructed, and if the size of the network is very large, then several zone make a group. So that means these are called as level. If we have two level, then region and cluster will be there. For three level, zone will also included, and so on. This is comparison why hierarchical routing is advantageous over the previous one, that is link state and distance vector routing, जिसमें every router maintain the routing table or routing entry for each router into the network. So जो first A diagram representing the network, and network is divided into 5 regions, in which somewhere 3 routers are there, somewhere 4 routers are there, somewhere 2 and 5 routers are there in each region. Now if each router maintain the full table for every router, it will having 17 entries, because we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, because we have 17 router connected into this network. So there will be total 17 entry if a full routing table is maintained by any of the router, and this B diagram representing the whole routing table that was followed by link state or distance vector. But when hierarchical routing is used and we are taking two level hierarchical routing, that means our routers are divided into region, and all 17 routers are divided into 5 regions. So every router maintain the routing entry for all domestic routers. I am repeating, each router maintain the routing entry for each domestic router. अगर अपन as an example first A router की बात करें, so for first A it will be having 3 domestic destinations. Those are 1A itself, 1B and 1C. So 1A, 1B and 1C, these are domestic destination, local destination, and afterward it only maintains single entry for each region. So 2, 3, 4, 5 are the region, and for which they have line and number of hop between them.
now every new things raise any negative thing also. So for the hierarchical routing, there is a penalty for, there may be a penalty for the packet that is increased path length. For example, if source is, for example, 1A, and we can take destination as 5C. So we can find out by observing the network, if we want to send the packet from 1A to 5C, in a common layman view, the shortest path will be this one, if we observe directly, because it is having, I think, less number of hop between them. But due to hierarchical routing, it will follow this path, because 5 के corresponding जो है यस 5 के corresponding, अगर राउटिंग हायरार्किकल राउटिंग टेबल में आप एंट्री देखेंगे तो 1A जो है, अगर उसको जाना है 5 नंबर रीजन के अंदर, इट विल फॉरवर्ड द पैकेट एट 1C लिंक, और 1C लिंक जो है वो ये वाला है जिस पे मैंने टिक मार्क किया है. सो द पैकेट विल फॉलो दिस पाथ एंड it may be long. So this is the, we can say, penalty for using the hierarchical routing. But कहीं अपन गेन करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस करना ही पड़ता है. डिपेंड करता है कि अपन अपना गेन जो है वो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है. तो इस केस में ऑब्वियसली अपन बहुत सारी चीजों को बचा पा रहे हैं, बैंडविड्थ को, मेमोरी को, सीपीयू टाइम को. तो ये जो है वो अपन सफर कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं डिले जो है. Yes, any point to discuss, बच्चों? सर जो 1A की टेबल है, उसमें रीजन 5 के लिए हॉप्स 4 है, वो 4 कैसे आए? रीजन 5 के लिए हॉप काउंट 4 है और ये है टेबल इसकी. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4. लेट मी डिलीट. ये 1A स्टार्ट हुआ, पहला होप 1C पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, 3B पे जाएगा, और 3 नंबर पे जो है ये 4A पे जाएगा, और 4th नंबर पे ये पहुंच जाएगा 5 नंबर रीजन के अंदर. यानी इसको 4 होप ट्रेवल करने पड़ेंगे. सर तो मतलब हॉप्स तो चेंज भी हो सकते हैं ना, अगर पाथ दूसरा हो, अगर जैसे ऊपर से जाए जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था. हाँ. लेकिन ये इसने जो राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट की है, जो 1A ने, वो यही राउटिंग टेबल इसने बनाई है. तो अब जो है ये जो भी पैकेट 5 को भेजना पड़ेगा वो इसके थ्रू ही भेजेगा. बट अगर ये डायनामिक अप्रोच फॉलो करता है और आफ्टर सम टाइम अगर इसके अंदर अपन शॉर्टेस्ट पाथ अप्लाई कर दें, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई कर दें, बट जिसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, अपन एक्सचेंज कर रहे थे क्या, कि कौन सा रूटर किस रूटर से कितने होप डिस्टेंस पे है. तो अगर वो डायनामिकली अपन अप्लाई कर देंगे, उस केस के अंदर ये जो है चेंज होता रहेगा
डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन। बट अगर वो आप अपन अप्लाई करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली वो ही अपनी बैंडविड्थ फिर से कंज्यूम होगी, क्योंकि अपन अपने नेटवर्क बहुत बड़ा है इस केस के अंदर, और जो है बहुत सारे पैकेट जो है नेटवर्क में एक्सचेंज होंगे। तो इस रीजन से जो है अपने जो बैंडविड्थ कंज्यूम होगी। ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं वो सही है कि इन फ्यूचर या डायनामिकली ये पाथ चेंज हो सकता है, बट मैंने जो ये पेनल्टी डिस्कस की है वो उस केस के अंदर है अगर ये डायनामिक अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं तो। ओके सर। Now question is, how any one can identify which will be optimum number of level, and in other word, how we can identify how many region will be there and how many router will be in any region, or is there any requirement of divide the region into cluster and so on। यानी कहने का मतलब है कि अपन कैसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ लेवल डिसाइड करें। पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 720 रूटर्स। First case, we are not following the hierarchical routing. So how many entry would be there in each router? सुन पा रहे हो क्वेश्चन क्या पूछा? आंसर तो लिखा हुआ ही था। यस सर। कितनी एंट्री होगी? अगर 720 राउटर हैं नेटवर्क के अंदर तो, और अगर अपन हायरार्किकल राउटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, हाउ मेनी एंट्रीज वुड बी देयर इन ईच राउटिंग टेबल ऑफ राउटर? 720 सर। 720, one for itself and 719 अदर राउटर्स के लिए। आउटलाइन होगा, डेस्टिनेशन होगा और डिस्टेंस होगी। अब अपन ने उसको डिवाइड कर दिया 24 रीजन्स, एंड इन एवरी रीजन 30 रूटर्स आर देयर। तो 24 इंटू 30 ये अपने हो गए टोटल 720। अब अपन देखते हैं कि एंट्रीज कितनी होगी। डोमेस्टिक एंट्रीज होगी 30, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। और ये तो हो गया खुद के रीजन का काम। खुद के रीजन के लिए उसके पास 30 एंट्रीज होगी, और बाकी बचे हैं अपने पास 23 रिमोट रीजन्स। तो टोटल हो गए अपने पास 53 एंट्रीज इन ईच राउटिंग टेबल। अगर थर्ड लेवल अपन और ले लेते हैं इसमें, 8 क्लस्टर्स, 9 रीजन इन ईच एंड 10 रूटर इन ईच रीजन। अपना कैलकुलेशन पूरा हो ही रहा है। तो लोकल की अगर अपन बात करें तो 10 एंट्रीज होगी, तो ये काम पूरा हो गया। उसके बाद 9 रीजन के लिए अपने पास 8 एंट्रीज होंगी, और उसके बाद 8 क्लस्टर्स के लिए अपने पास 7 एंट्रीज होंगी। तो टोटल अपने पास हो गई 35 एंट्रीज। ये नीचे विजिबल नहीं है, ऊपर लिख दिया मैंने। कोई डाउट इसमें? सर अगर इसमें जैसे क्लस्टर्स यूज कर रहे हैं तो राउटिंग टेबल में फिर क्लस्टर और रीजन के लिए अलग अलग कैसे डिफाइन होगा? मतलब जैसे पिछले वाले में तो रो था रीजन के लिए, बट अब यहाँ पे
इसके नीचे थर्ड लेवल आ जाएगा, ये हो गए लोकल राउटर, ये अपने हो गए क्लस्टर, देन रीजन। ओके सर, ओके। हाँ, ये कोई थे मैथमेटिशियन, क्लीन रॉक, उन्होंने अभी जो अपन ने डिस्कस किया उस डाउट को इन्होंने दूर किया। ऑप्टिमम नंबर ऑफ लेवल फॉर n रूटर सबनेट, ही हैज आइडेंटिफाई log base en। तो ये तो लेवल होंगे और ये एंट्रीज उन्होंने फाइंड आउट की, e log base en कैपिटल N, दैट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। उसके बाद सम कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आप अभी तक यूज भी कर रहे हैं। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्ट राउटिंग, दीज आर वे ऑफ राउटिंग अ पैकेट। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, अगर एक पैकेट को अपन सभी डेस्टिनेशंस को भेजना चाहें एक साथ, तो इसके लिए अपन ने एक मैकेनिज्म तो पढ़ ही लिया था, फ्लडिंग जो थी। फ्लडिंग के थ्रू अपन ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से ध्यान में रखें। फ्लडिंग के थ्रू अपन ब्रॉडकास्ट राउटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो सेंड अ पैकेट टू ऑल द डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर राउटिंग टेबल जो है वो यूज होगी राउटर की, जिसके अंदर जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आउटलाइंस हैं वहां पे पैकेट भेजा जाएगा। इसमें डिफरेंस ये है कि ये करेगा, फ्लडिंग में तो ब्लाइंडली वो इनकमिंग के अलावा जितने भी आउटगोइंग लाइन है वहां पे डाल देगा, लेकिन जो पहला केस है उसके अंदर वो प्रोसेस करेगा पैकेट को। प्रोसेस इन द सेंस वो एक नया पैकेट बनाएगा और उसमें ये जितने भी उसके पास डेस्टिनेशंस हैं राउटिंग टेबल के अंदर, वो एज ए डेस्टिनेशन उस पैकेट में एंट्री करेगा और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन है उस लाइन पे उन पैकेट्स को डाल देगा। यानी सीपीयू टाइम इसमें कंज्यूम होगा और फ्लडिंग में ये बच जाता है। फ्लडिंग में ब्लाइंडली वो इनकमिंग के अलावा जितनी भी लाइंस बची हुई है उन पे वो डाल देगा। थर्ड वे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग। इसके अंदर single packet has been constructed and it will having all the destinations in a single packet. Now suppose ये पहुंच गया राउटर R1 के पास, R4 के पास मैं कह देता हूँ, और ये जो 4, 5, 6, 7 जो है ये आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउटर्स के। जब ये R4 के पास पहुंचेगा इट विल जनरेट अ डुप्लीकेट पैकेट। उन डुप्लीकेट पैकेट में R4 तो डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज ये इसके खुद के लिए ही था डेस्टिनेशन। 5, 6 एंड 7, सपोज ये 5, 6 एंड 7 है, या थोड़ा सा डिफरेंट केस ले लेता हूं मैं, दिस वे। इट विल अगेन डुप्लीकेट द पैकेट एंड यहाँ पे जो पैकेट भेजेगा उसमें सोर्स डाल देगा ये 5, और यहाँ पे जो पैकेट भेजेगा उसमें वो सोर्स डाल देगा 6 एंड 7। then it will again R6 will again duplicate this packet and copy the destination as 7 and forward to the R7. So this is multi destination routing. इसको बिट मैपिंग भी कहते हैं।
यानी एक ही पैकेट के अंदर मल्टीपल डेस्टिनेशन के एड्रेसेस बिट मैप के फॉर्म में भी रखते हैं। बिट मैप इज नथिंग बट bit pattern and corresponding destination. That is, it is mapping a particular bit pattern with a destination. एक तरीका अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is sync tree or spanning tree. Spanning tree is a tree that do not have any cycle. तो इसके थ्रू अपन ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसमें साइकिल भी नहीं होगी और सभी के पास पहुंच भी जाएगा। तो इसका एग्जांपल अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिया था। Sync tree and spanning tree is also called reverse path forwarding. So ये जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है इन मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट राउटिंग इज मल्टीकास्ट राउटिंग। अपन नॉर्मली मेल पे एंड व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल को अपन इंक्लूड करते हैं और ग्रुप बनाने के लिए अपन दो तरीके यूज करते हैं और वो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि या तो अपन लिंक भेज दें और या अपन उनको इंक्लूड कर लें। सो दिस इज काइंड ऑफ मल्टीकास्ट। अ ग्रुप ऑफ IP एड्रेस विल बी इंक्लूडेड फॉर मल्टीकास्टिंग। अब ये होता कैसे है? सपोज दिस इज ए नेटवर्क और इस नेटवर्क के अंदर दो ग्रुप्स हैं। They have named as group number 1 and 2. Some of the routers are members of group 1 and some of the routers are members of group 2 and some of the routers are member of both the group. अगर इसका अपन स्पैनिंग ट्री बनाते हैं तो ये स्पैनिंग ट्री बनेगा एज ए होल जिसके अंदर सभी रूटर्स इंक्लूडेड है एंड ऑल्सो देयर इज डिजिट दैट रिप्रेजेंट the membership of a group for a particular router. तो ये स्पैनिंग ट्री यूज हो सकता है ब्रॉडकास्ट के लिए और अगर अपने को मल्टीकास्ट करना है फॉर ग्रुप नंबर 1, in that case this spanning tree will be used and if there is requirement of multicast for group number 2 then this spanning tree will be used. That means जो भी राउटिंग एल्गोरिदम होगा that will construct a spanning tree depending upon what is requirement. Is it broadcasting or it is multicasting for a group और फिर उसके बाद जो है पैकेट जो है वो ट्रांसमिट होंगे नेटवर्क के अंदर ऑन दैट स्पैनिंग ट्री। सो ये अगेन आपके डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ी उसका एप्लीकेशन हो गया और राउटिंग में वो फ्रीक्वेंटली यूज होती ही है। यस, एनी डाउट बच्चों? No, sir.
वन मार्किंग स्कीम हैज़ बीन अपलोडेड ऑन टू द टीम, फाइल सेक्शन में जाके देख लेना, जिसमें क्विज असाइनमेंट एंड अदर डिस्क्रिप्शंस जो है वो मेंशन है। क्विज में कोई भी मेकअप क्विज नहीं होगी, तो आप ध्यान रखें बैंडविड्थ का और टाइमिंग का, जो कि आपको अभी तक आपको पता लग गया होगा। ओके, सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आपसे जो पूछनी है।